ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮੋਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਦੇਵ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੋਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस समारोह में टैगो मोगाडोरो, मार्लिन एंटरटेनमेंट, आचार्य बालकृष्ण, सुनीता पोदार भी मौजूद रहे। रामदेव ने कहा कि वह आयुर्वेद और योग के खेत्र में इस दुनिया भर में भारतीय सभ्याचार की छाप की तस्दीक मानते हैं। जिक्रयोग है कि मैडम तुसाद म्यूजियम साल 1835 में स्थापित किया गया ਸੀ। मैडम तुसाद म्यूजियम मोम ਦੀਆਂ मूर्तियों का प्रसिद्ध अजायब घर है। इस विच दुनिया भर दीआं कई मशहूर हस्तियों के पुतले लगाए गए हैं। जेकर भारत की गल करिए तो हुण तक लंडन के म्यूजियम में महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बॉलीवुड अदाकार सलमान खान, शाहरुख खान, पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ समेत लगभग 12 मशहूर हस्तियों के पुतले लगाए जा चुके हैं। And a joy to stand before you today as a representative of Madame Tussauds New York to celebrate an extraordinary moment of cultural and spiritual recognition. We are here to unveil a masterpiece that not only symbolizes excellence in art, but also honors a figure whose life and teachings have transcended borders and touched the lives of millions. Today, we pay tribute to someone who has been a beacon of inspiration and guidance in the realms of yoga and Ayurveda, Swami Ramdev, a guru who has brought the ancient practices of yoga into the living rooms and hearts of people worldwide, making the profound wisdom of India accessible to all. Swami Ramdev's journey is a testament to the power of dedication, discipline, and an unyielding commitment to the betterment of humanity. His teachings have not only enlightened individuals, but have sparked a global movement towards holistic wellness and spiritual awareness. It is this very essence that Madame Tussauds, an institution globally renowned for immortalizing legends, has captured in wax. The figure we are about to unveil, it's unique and very special for us at Madame Tussauds, because after debuting here in New Delhi, it will then travel to New York to be on display. Madame Tussauds New York, right in the heart of Times Square, is the greatest attraction in New York City. And this wax figure will join over 200 other global icons, making us even greater. I extend my heartfelt gratitude to Swami Ramdev, his team, and the people of India for this magnificent achievement, and I look forward to seeing this extraordinary reveal with you. If New York is the heart of the world, India is the spirit. Right now, and through Swami Ramdev's figure in New York, India will look out to the world. 2018 में मैं मैडम तुसाद का जो लंदन का अट्रैक्शन है वहाँ पर गया था। वर्ल्ड में 24 ऐसे अट्रैक्शन हैं और न्यूयॉर्क का उसमें सबसे बड़ा है। उसमें जैसे बताया नम्रता ने कि वहाँ अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी बहू ऐश्वर्या राय है, उनके फिगर्स हैं मतलब, और ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान है। ये तो 5 तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन उन सब के साथ वर्ल्ड के 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक सन्यासी को इन्होंने सम्मिलित किया और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के योग पर है, आयुर्वेद पर है। अब तो अमेरिका में भी मेड इन यूएस एंड मेड बाय अमेरिकन्स, अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैंने योग आयुर्वेद स्वदेशी का जो मूवमेंट पतंजलि से चला, उसकी लहर अब पूरी दुनिया में। नैतिक एथिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी
नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित ऐसी शिक्षा जिसमें भाषा का बोध हो, विषयों का बोध हो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके साथ करिकुलम में कैरेक्टर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड, रूट बेस्ड एजुकेशन पूरी दुनिया को मिले, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य पतंजलि से चल रहा है। और मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा लक्ष्य होगा 5 से 10 लाख स्कूलों में गुरुकुलीय शिक्षा को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि पूरी दुनिया में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और युग निर्माण की एक नई दिशा हमारे यूथ में, हमारे स्टूडेंट्स में ऐसी एक उनका ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से, रिलीजियस टेररिज्म से, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट टेररिज्म से पूरी दुनिया को बचा करके सही दिशा में दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिले। उस दिशा में बच्चे आगे, ये समाज, राष्ट्र और विश्व आगे बढ़ सके, ऐसे वर्ल्ड सिटीजन हम देने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब जो हेल्थ सीकर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको उनके बीपी से, उनके शुगर से, उनके थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से मुक्ति मिले। ये सिंथेटिक मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं और मैडम तुसाद के अंदर ये जो प्रयत्न है, मैंने पूछा भाई तुम एक मोम की प्रतिमूर्ति, उसको जीवंत स्वरूप उसमें प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ये वैक्स फिगर बोलते हैं, उसको प्रतिमा या उसको दूसरे शब्दों से वो नहीं नवाजते कि हम हूबहू उसकी प्रतिमूर्ति, उसमें जीवंतता प्रदान करते हैं। तो लगभग 2 करोड़ की लागत इनको लग जाती है और मेरे जैसा फिगर बनाने में तो शायद कुछ थोड़ा बहुत और ज्यादा ही लगा होगा। तो बात कोष्ठ की नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की है। तो वर्ल्ड में ऐसे 24 ऐसे अट्रैक्शन मैडम तुसाद की ओर से बनाए गए हैं और उसमें भारत और भारतीयता को, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क सिटी में है और उसमें भारत के एक सन्यासी को इन्होंने स्थान दिया है। हम उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वामी रामदेव का सम्मान नहीं, ये योग का, आयुर्वेद का, ये भारत की सनातन संस्कृति का, जो हमने अपने पूर्वजों से सांस्कृतिक विरासत पाई है, ये उसका सम्मान है। और सबसे ज्यादा लोग वहां पर आते हैं और वर्ल्ड में आइकॉन केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड से ही नहीं होते, वर्ल्ड में आइकॉन केवल पॉलिटिक्स से ही नहीं होते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं होते, केवल साइंटिस्ट ही नहीं होते, सन्यासी भी वर्ल्ड में आइकॉन हो सकते हैं। इसको इन्होंने जो इज्जत दी है, उसको गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा दी है, यह भी इनके एक विजनरी जो एटीट्यूड है उसको दर्शाता है। तो आज मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा लग तो मेरे जैसा ही रहा है। तो लेकिन जैसे नम्रता कह रही थी, एक मैन मेड ये पुरुषार्थ है और एक गॉड मेड स्वामी रामदेव आपके सामने है। तो जब मैं मैडम तुसाद अट्रैक्शन लंदन में गया तो करीब 200 तरह से मेरा मेजरमेंट लिया गया, अब तो मैं भूल भी गया उसको, और खड़ाऊ के साथ ही था। अभी भी हम खड़ाऊ पर ही खड़े हैं, एक खड़ाऊ बगल में है तो एक खड़ाऊ खाली भी रखे, इन्होंने हरिद्वार से मंगवा ली थी। तो आज ये, क्योंकि ये तो प्रतिमा है ना, इसलिए एक ही एक्शन कर सकती है, मैं तो कई कर सकता हूं। कुछ पूछ रहे थे फिगर की मैचिंग इतनी अच्छी कैसे है, मैंने अपनी फिगर को बिगड़ने नहीं दिया ना।
2018 का ही है जो उन्होंने माप तोल लिया था, माने थोड़ी से लेकर के चोटी तक, हाथ से लेकर के इसके मैंने देखा नाखून भी जैसे मेरे वैसे ही मैच किया। कुछ थोड़ी बहुत 5 सालों में चेंज आ जाए तो इनके सिंगापुर से ये कलर मैचिंग वाले स्पेशल आर्टिस्ट आए हुए, 200 आर्टिस्ट लगे हैं इसके बनाने में। 200 तरह के मापदंड अलग अलग तरह से उसको माप करके, सामने से लेकर के पीछे से लेकर के, माने ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। और अब मैं तो इतना ही कहूंगा, हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चले, लोगों को एक प्रेरणा मिले। मेरा सपना है मैं अपने जैसे विचार, सोच और रचना धर्मिता को जीने वाले ऐसे योग पथ पर और कर्तव्य पथ पर बढ़ने वाले कुछ लोग इस हिंदुस्तान में, और खाली हिंदुस्तान में क्यों, पूरे जहान में, पूरे विश्व में, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम माना, तो पूरे विश्व में ऐसे रचना धर्मिता वाले लोग तैयार हों जो योग के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते चलें, कर्मयोग के पथ पर आगे बढ़ते चलें।